postmaster, assistant postmaster, postman, dark and diamond dark sailors. We started off with a program of training 50,000 of them. Today, I think it's around 2,45,000 of the figure that is being cited. The aim was कि citizen हम सेवा भाव कैसे लाएं, service करते हुए हम how do we bring that self-satisfaction that we have achieved. Some of you highlighted this कि आपने जो सेवा आपने की बात है कि किस तरीके से आपको satisfaction मिला just on the journey जो आपने उसको cash देके किया. So these are the small instances that we are really proud of, and this is the view, the vision that we wanted. It's not just we are not here to just take our salary, do our job and go back home. We should feel proud at the end of the day that we are doing something. We are creating a nation. We are part of the nation building. So in this plan, when we started with that Tanuyot program along with the police and other things, while police and other people have done well, I think the most visible thing, because you are the last, your people are the last persons who are teaching the last man in the line. And it is most in-depth thing that is happening. It is in this context, sir, we have thought about doing a needs assessment and competency building for the dark community. So we'll take a detailed post mapping, plan out what they are doing, how we can improve better on their services. So this is one of the tasks that we are forming. On the capacity building plan, one of the things that we planned was to map out the role of each individual in the ministry department and feel कि आप लोग करते क्या हो, आपकी competency क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. So the lady, as she said, that अब उनके पास सारे courses हैं. This has come out only because हमने ये competency needs assessment की. हम लोग वो courses अब डाल पा रहे हैं जिसका ज़रूरत हमें अपने job को perform करने के लिए पड़ता है. We have thought about behavioral courses. We have thought about competence, functional courses, behavioral courses like stress management when you are doing your job, yoga at workplace, functional courses जो आप लोग procurement का करते हैं, आप लोग और भी कई सारी चीजें करते हैं. So we thought about these things that we do and plotted them in a training calendar. जिस पे आप लोग मान लीजिए आप जो कर रहे हैं, it's a wonderful thing that you're doing. And I have some figures, but I guess your figures are more updated than mine. We found out that there are 31. So what we are thinking about is not only are you doing better than most of the institutes, most of the organizations, it is visible from the national capacity plan that we have built up, wherein your progress is reflected. मेरे सम्मुख वरिष्ठ अधिकारी हैं, विशेष तौर पर सभी सीसीएम जी, मेरी जी, ट्रेनिंग उपस्थित सब डाक परिवार के साथी सदस्य और मीडिया के साथ किसी मंत्री के लिए अपने विभाग में एक सफल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अपने परिवार के साथ अपनी खुशी शेयर करने का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है जो आज मिलता है. बड़े प्रसन्न हैं हम सब. ये जो खुशी के पल है या कुछ अचीवमेंट जो हमारे बीच हमने शेयर किया है, इन सबको देश के नागरिकों को समर्पित करते हैं कि ये आपकी सेवा का हमारा जो प्रतिबद्धता था, निर्धार था, उसी के कारण आज हम ये कर पाए. ये विभाग की जनता की देश की. ऐसे भी हमारे देश में पिछले 10 साल से देश के यशस्वी एवं तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे
डायनेमिक कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में इस विभाग ने काफ़ी नवाचार किए और आदरणीय मोदी जी तो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि हर विभाग एक रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्म करे और अपने विभाग को अपनी जो कार्यशैली है, अपना जो कार्य का क्षेत्र है, उसको एक तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्म करे जिससे इस देश की जनता को लगे कि अब देश बदल रहा है और इसका अनुभव इस जनता तक पहुँचे। हमने देखा है कि देश की इस बदलती समय के साथ हर जनता की, हर नागरिक की एक अलग आशा अपेक्षा खड़ी थी और उन आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें भी अपने आप को क्षमतावर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा और इसी दिशा में हमने ये काम को प्रारंभ किया और मुझे खुशी होती है कि हमारा ही ये सफलता देखकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये महसूस हुआ कि दिल्ली देश के इस केंद्र में एक कर्मयोगी भवन होना चाहिए, उत्तम ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अपने शिलान्यास किया। तो इसकी जो आवश्यकता है बदलते समय के साथ, क्योंकि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम को सफल करने के लिए सबसे अति आवश्यक है जनता का शासन और प्रशासन का एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संवाद और एक दूसरे के साथ कम दूरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलना। जनता, शासन और प्रशासन जितना एक दूसरे से नज़दीक आएंगे उतनी ये डेमोक्रेसी सफल हो और डेमोक्रेसी को सफल करने के लिए आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, उनका हमेशा एक कहना भी है कि देश को जब हम एक बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं देश में, इस देश में आने वाले समय में जब ये देश अपना शताब्दी वर्ष मनाए, अपना 2047 में ये जो शताब्दी वर्ष मनाए, तब देश बाकी सब देश की कंपैरिजन में एक सिरमौर राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने और इसी विकसित राष्ट्र बनाने में ये सफल विभाग, हर विभाग को अपने वर्ष का एक रोड मैप, अपना खाका तैयार करना है कि हम 25 साल में, ये अमृत काल में हम कैसे काम करें। और मैं ये मानता हूँ कि अमृत काल में काम करने का जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर में हमारे देश की सबसे ज़्यादा, जिसके पास स्टाफ स्ट्रेंथ है, जिसके पास इस विभाग की सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ रेलवे के बाद अगर किसी एक डिपार्टमेंट में 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी है तो वो हमारे विभाग में। और ये आज कर्मचारी नहीं रहे, ये सारे के सारे 4.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी बने, अपने आप को देश और जनता के प्रति समर्पित करने के लिए एक नए ट्रेनिंग के साथ अपने देश हित में काम करने में लगे। जिस तरीके से 2 साल पहले हमने सोचा था कि हम इसे कैसे किए कि हमने कर पाए। हम आज एक सफल प्रोजेक्ट करने के बाद किसी देश के किसी विभाग ने नहीं किया। हमारे श्यामा प्रसाद जी को मैं बता रहा हूँ कि किसी एक डिपार्टमेंट में अपने प्रोजेक्ट को इतना सफल करने के बाद इसी खुशी के साथ बैठे हुआ आपको खुशी भारत सरकार के कोई विभाग में नहीं मिलेगा दूर दराज गांव में, ग्रामीण अंचल में 1,65,000 से पोस्ट ऑफिस के जरिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट जैसे LW एरिया में, और कभी कभी हम बोलते भी कि आइलैंड हो या समंदर हो या कच्छ जैसा रिजर्ट हो, उस एरिया में अगर कोई काम कर रहा हो, और विशेष तौर पे चैलेंजेस के समय में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तब पूरी दुनिया थम गई, कोई एक दूसरे को मिल नहीं रहे। तब किसी झुग्गी झोपड़ी में गरीब माँ को
पैसा और दवा पहुंचाने का काम इस देश में किया हो तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक ने किया। और पूरे अपने आप को बदलती हुई, क्योंकि पुराने जमाने में जो मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, एक गाने लिखा जाता है कि डाकिया डाक लाए, लेकिन अब डाकिया का डाक लाने का केवल ये रोल नहीं है। अब डाकिया बैंक भी लाया, डाकिया इंश्योरेंस भी लाया, डाकिया दवाई भी लाया, डाकिया प्रसाद भी लाया, हर चीज डाकिया लेकर आता है। हमने पाया कि हमारे अभी हमने IT 2.0 में भी काफ़ी काम किया है। हमने 1,40,000 से अधिक हैंड होल्डिंग मशीन, मोबाइल भी दिए हैं, थर्मल मीटर भी दिए हैं। हमने एक तरीके से हमारे विभाग को टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सारे इक्विपमेंट्स इन बच्चों को दिया है। इन जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया है टेक्निकल, और उनके हाथ में एक नई टेक्नोलॉजी का साधन देकर जनता की अपेक्षा के हिसाब से हम काम भी प्रारंभ किए हैं और कर भी रहे हैं। इस देश में पहली बार हो रहा है कि पिछले कई सालों के बाद एक वक्त था कि पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे। मैं कोई पॉलिटिकली यहाँ बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन इस देश में पहली बार पिछले 10 महीने में 5,400 से अधिक पोस्ट ऑफिस खुले और 5,000 खुलने जा रहे हैं। तो हम उस एरिया में पहुंच रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। एक चैलेंजिंग एरिया, टेरिन देश का ऐसा है, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, फिर भी हम जा रहे हैं और उनकी समस्या भी हमें पता है। जो बैकबोन है हमारी, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको सशक्त भी कर रहे हैं और आपकी संभाल करना, आपकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना समझिए, क्योंकि आप लोग ही ये इस देश में अगर डोर स्टेप पे कोई भारत सरकार का चेहरा हो, और वो सामान्य चेहरा नहीं है, ट्रस्टवर्दी चेहरा है। पूरा देश में ट्रस्टवर्दी नेटवर्क ऐसा हो जिस पर हर किसी को ट्रस्ट हो, ऐसा कोई नेटवर्क है तो हमारा इंडियन पोस्टल विभाग, ये हमारा पोस्टल विभाग, जिसको जनता को एक भरोसा, जनता को एक आशा अपेक्षा है। और बदलते समय के साथ ये नेटवर्क के जरिए हम और अधिक सेवाएं भी सोच रहे हैं, अधिक प्रदान करेंगे। और इस सेवा प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग में भी हमने नए नवाचार लेकर आए, और भी अधिक ट्रैकिंग जब हो रहा है आवश्यकता के हिसाब से हम करेंगे। हमारे फ्रेमवर्क जो भी होगी हम इसमें और अधिक जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि देश में इंडियन पोस्टल विभाग एक अपने आप को एक नए स्वरूप में देश की जनता के सामने काम कर रहा है। आने वाले समय में अधिक सशक्त हो, अधिक से अधिक ट्रेनिंग लेकर आवश्यकता होने पर हमारे साथियों को जो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो सारी ट्रेनिंग भी देंगे। उनके जो टेक्नोसेवी, उनको जो भी इक्विपमेंट देना होगा वो देंगे, और इस देश को एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पहुंचाने का काम करेंगे। यही आपके अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ सारे ट्रेनिंग्स को, और विशेष तौर पे जो 15,000 हमारे मास्टर ट्रेनर है, मैं ये मानता हूँ किसी के पास नहीं है, ये 15,000 मास्टर ट्रेनर को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।